تاریخ گواہ ہے کہ بعض اوقات معمولی ذروں پر قسمت کی دیوی یوں مہربان ہوئی کہ آفتاب بن کر ایک جہاں روشن کر دیا۔ وہ جو مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے غلام منڈی میں جا پہنچا تھا اور جس کی بولی سر عام لگائی جا رہی تھی، وہ گوہر نایاب سبکتگین تھا، جس کے نزدیک بخارا کے بازاروں کی بھیڑ، مدرسوں کی رونق، اہل علم کی فراوانی گویا ایک خواب تھا۔ یہ مقدر کی مہربانی ہی تو تھی کہ وہ ایک غلام منڈی سے سفر کرتے ہوئے الپتگین کے عظیم الشان محل تک جا پہنچا تھا۔ اس غلام کی دلیری نے ایک ہی حملے میں غزنی کو مٹھی میں دبا لیا، جس کی بدولت الپتگین غزنی کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا اور 15 سال تک نہایت کروفر سے غزنی پر حکومت کی۔ جس طرح غلام سبکتگین نے ایک ہرنی اور اس کے بچے پر رحم کیا اور ہرنی کی تشکر امیز نگاہوں میں جو ممنونیت تھی، شاید قدرت کو اس کی اسی ادا پر پیار آ گیا تھا کہ ایک طاقتور انسان نے ایک کمزور جانور پر رحم کر کے تاریخ میں ایک مثال قائم کر دی اور مسند حکومت اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ ماضی کا آئینہ، با اختیار اور بے اختیار انسانوں کے عبرت اثر واقعات، سلطان سبکتگین، والد گرامی سلطان محمود غزنوی کی داستان، فتح مکرر۔ وہ اپنا دارالحکومت چھوڑ کر بھٹنڈا میں اس لیے مقیم ہوا تھا کہ مسلمانوں کو لاہور اپنے دارالحکومت تک نہ پہنچنے دے۔ ابھی تک اپنا دفاع اس کا مقصد تھا، لیکن ابھی سے غزنی پر حملہ آور ہونا تھا۔ اس نے کو پیکر ہاتھیوں اور بہادر سپاہیوں کا بہت بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی کی طرف جانے کے لیے بے چین ہو گیا۔ اسے اپنے لشکر کی تعداد اور راجپوتوں کی بہادری پر بڑا ناز تھا۔ اس کے باوجود اس کے دل میں مسلمانوں کا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے تمام راجپوت سالاروں کا اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس کا مقصد حکمت عملی طے کرنا تھا، بلکہ وہ مسلمانوں کی بہادری کی تعریف کر کے راجپوتوں کی غیرت کو للکارنا چاہتا تھا، تاکہ وہ آخری دم تک لڑنے کا عہد کر لیں۔ جب رات کی تاریکی میں جگہ جگہ جلتے ہوئے آگ کے الاؤ کی روشنی میں یہ سالار دائرہ بنا کر بیٹھ گئے تو راجہ جے پال قلعے سے نکلا اور ان کے درمیان آ کر بیٹھ گیا۔ مہاراج، کیا جنگ کا فیصلہ ٹل گیا جو ہمیں طلب کیا گیا ہے؟ موت کا وقت تو ٹل سکتا ہے، مگر اب یہ جنگ ٹلنے والی نہیں۔ پھر وہ کون سی بپتا ہوئی کہ ہمیں بلا لیا گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں صبح ہوتے ہی بھٹنڈا سے نکلنا ہے؟ فیصلے میں کوئی تبدیلی ضرور آئی ہے۔ تبدیلی تو نہیں آئی، لیکن چلنے سے پہلے میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مہاراج، ہم سننے کو تیار ہیں۔ تو سنو، ہم جس یدھ کے لیے جا رہے ہیں وہ کوئی معمولی جنگ نہیں۔ ہمارا مقابلہ مسلمانوں سے ہے۔ مسلمانوں کی بہادری کے قصے مشہور ہیں۔ ان کی تلواروں کے سامنے کسی کا ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد امر ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ امر ہو جانے کی آرزو میں اپنی گردنیں خود تلواروں پر رکھ دیتے ہیں۔ ان کے گھوڑے بجلی کی طرح میدان میں لشکاریں بھرتے ہیں۔ ان کا امیر سبکتگین تو ایسا پہاڑ ہے جسے پاش پاش کرنا آسان بات نہیں۔ شاید ہمارے ہاتھی بھی اس سے ٹکرا کر واپس آ جائیں۔ اگر انہیں فتح ہوئی تو ہمارے دھرم کا نشان تک مٹ جائے گا۔ وہ شاید ابھی کچھ اور کہتا کہ کئی راجپوت ایک ساتھ چیخ اٹھے، مہاراج، ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ کے دل میں مسلمانوں کا ایسا خوف بیٹھ جائے گا۔ میرے بہادر سپوتوں، تم نے غلط سمجھا۔ میں مسلمانوں سے خوف زدہ نہیں۔ میں تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تمہیں غیر معمولی بہادری سے لڑنا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کی بہادری کے قصے بیان کر دیے، یہ بیان نہیں کیا کہ راجپوتوں کی بہادری کی قسم آسمان کھاتا ہے۔ ہم جب میدان میں قدم رکھتے ہیں تو دھرتی پناہ مانگتی ہے۔ مسلمان ابھی تک آپس میں لڑتے رہے ہیں، انہیں کبھی ہم سے واسطہ نہیں پڑا۔ ہم آپ کو وچن دیتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد کبھی آپ مسلمانوں کو بہادر نہیں کہیں گے۔ اب یہ جنگ مسلمانوں سے نہیں، آپ کے غلط خیالوں کے لیے ہوگی۔ اب یہ جنگ میدانوں میں نہیں، غزنی کے بازاروں میں لڑی جائے گی۔ اب مندر نہیں، مسجدیں گریں گی۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، لیکن میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ یہ دعوت تم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ جو کوئی مسلمانوں کے امیر سبکتگین کو قتل کرے گا، میں وچن دیتا ہوں کہ جو وہ مانگے گا میں اسے دوں گا۔ اگر میری آدھی حکومت بھی مانگے گا تو میں اسے دے دوں گا۔ میدان میں پھیلے ہوئے سناٹے میں کئی گنا سناٹے کا اضافہ ہو گیا۔ کسی میں جرت نہیں تھی کہ اس سناٹے کو اپنی آواز سے توڑتا۔ سب خاموش تھے۔ بالآخر جے پال کا سپہ سالار بھیم سنگھ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ مہاراج، یہ شرط ہی غلط ہے۔ ہم صرف سبکتگین کو قتل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں،
हमारा मुकाबला पूरे लश्कर से होगा। जब लश्कर ही भाग खड़ा होगा तो सुबकतगीन मैदान में रहकर क्या करेगा? अगर इनाम के लालच में हमारा पूरा लश्कर सुबकतगीन के ताक़ुब में लग गया तो हमारी तरतीब बिखर जाएगी, फिर हमें शिकस्त से कोई नहीं बचा सकेगा। अगर आप सबको सुबकतगीन के कातिल को इनाम देना ही है तो इसका ऐलान इस वक्त कीजिएगा जब सुबकतगीन कत्ल हो जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए। जयपाल ने अपने सिपा सलार की बात मान ली और इजलास बर्खास्त कर दिया। इसका मकसद पूरा हो गया था। राजपूतों को भड़काना मकसूद था, वो इन्हें तैश दिला चुका था। हर राजपूत ये कहकर उठा था कि वो मुसलमानों की बहादुरी की शोहरत को खाक में मिला देगा। इजलास खत्म हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि एक नौजवान सालार किले के दरवाजे पर आया और राजा से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। यह सालार इन पहरेदारों के लिए अजनबी नहीं था, वो कुछ देर पहले भी इसे देख चुके थे। इसके बावजूद राजा से इजाजत लेनी जरूरी थी। नौजवान सालार की खुशनसीबी थी कि राजा अभी सोया नहीं था। इसका सिपा सालार भीम भी इसके पास ही बैठा था। राजा ने इजाजत दे दी और पहरेदारों ने इस नौजवान सिपा सालार को इस कमरे तक पहुंचा दिया जहां राजा इस वक्त बैठा था। कहो कैसे आना हुआ? मैं आपकी पेशकश पर वचन देने आया हूँ। कैसी पेशकश? मैं सुबकतगीन को कत्ल करने का अहद लेकर आया हूँ। तुमने ये बात भरे इजलास में क्यों नहीं की? मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे नीचा दिखाने के लिए खुद भी इस पेशकश को कबूल कर ले। इस कत्ल के सिलसिले में मुझे जो कुछ चाहिए था वो ऐसा नहीं था जो सबके सामने मांगा जा सके। तुम अजीब उलझी हुई बातें कर रहे हो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। जो कुछ कहना चाहते हो साफ साफ कहो। मुझे जो कहना था वो तो मैं कह चुका। तुम यकीनन इनाम में इजाफे की बात करने आए हो। मैं आधी सल्तनत देने को तैयार हूँ। अनदाता हुकूमतें तो राजाओं को जेब देती हैं, मेरी मांग तो कुछ और है। अजीब आदमी हो के हुकूमत ठुकरा रहे हो, फिर तुम्हें क्या चाहिए? आप वचन दे के अगर मैं कोई नागवार बात कर बैठूं तो मुझे माफ कर दिया जाएगा। आपके वजीर की बेटी से मुझे इश्क हो गया है, इसके बगैर मेरा जीना बेकार है। अगर मैं सुबकतगीन को कत्ल करने में कामयाब हो गया तो इसकी बेटी से मेरी शादी हो जाए। जयपाल को इसकी ये शर्त तो नागवार गुजरी। वो कह सकता था कि वो चीज मांगो जो मेरी हो, लेकिन इस वक्त ये शर्त मान लेने में ही भलाई थी। मैं वचन देता हूँ कि इस लड़की से तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। अभी नौजवान पूरी तरह मुतमईन भी नहीं हुआ था कि भीम बोल पड़ा, महाराज, बेटियों की शादी का इख्तियार माँ बाप को होता है। हम कौन होते हैं वचन देने वाले? और यूं भी वजीर महाराज बरहमन है और ये नौजवान राजपूत, वो कभी इस रिश्ते पर तैयार ना होगा। मैं राजा हूँ, राजा जयपाल, वो मेरा हुक्म कभी नहीं टाल सकेगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। राजा के तेवर देखकर भीम ने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। राजा ने एक मर्तबा फिर नौजवान सालार को मुखातिब किया, तुम किसी की बातों में ना आओ। हम तुम्हारी ख्वाहिश का जरूर एहतराम करेंगे। प्रधानमंत्री तो क्या चीज है, हिंदुस्तान का कोई राजा भी हमारे हुक्म को नहीं टाल सकता। एक बात और है, बोलो। मेरे पास 5000 फौज है। मैं चाहूंगा कि जब जंग शुरू हो तो मुझे और मेरे लश्करियों को अलग रखा जाए। इसने भीम की तरफ देखते हुए कहा, मैं जब चाहूंगा और जिस तरफ से चाहूंगा हमला आवर होकर सुबकतगीन पर टूट पड़ूंगा। तुम हर तरह से आजाद होगे, जिस तरह चाहो ये कारनामा इंजाम दो। तो मैं वादा करता हूँ कि सुबकतगीन को कत्ल किए बगैर वापस नहीं आऊंगा। मुझे भी अपना वचन याद रहेगा। नौजवान के चले जाने के बाद जयपाल ने भीम को एतमाद में लिया। सिर्फ बहादुरी ही सब कुछ नहीं होती, मसलहत भी कोई चीज होती है। ये मसलहत ही थी कि नौजवान की शर्त मान ली जाए। वो मंत्री की बेटी से प्रेम करता है। प्रेम में कितनी शक्ति होती है ये तो तुम जानते ही हो। वो अपनी प्रेमिका को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर इसने सुबकतगीन को कत्ल कर दिया तो हमें और क्या चाहिए? मैं तो इसलिए बोला था कि आप अपना वचन पूरा कर सकेंगे। ये तो इस वक्त देखा जाएगा जब अपना कौल पूरा करेगा। अगर हम अपना वचन पूरा ना कर सके तो वो हमें मजबूर नहीं कर सकेगा। भीम सोच रहा था कि राजा कितना अय्यार है, बेचारे की जवानी दाव पर लगा दी, जबकि वो अपने वचन में मुखलिस भी नहीं है। सुबकतगीन को जब इन तैयारियों का इल्म हुआ तो इसने भी लश्कर तरतीब दिया और गजनी से निकलने की तैयारी करने लगा। वो नहीं चाहता था कि दुश्मन को आगे बढ़ने का मौका दे। हालांकि इसके बाद सरदारों का मशवरा ये था कि जयपाल को काबुल तक आने दिया जाए। हम इन इलाकों से वाकिफ हैं, इसे बाआसानी शिकस्त दे सकेंगे।
हम इन पहाड़ों में छुपकर बैठ जाएं और फिर अचानक इस पर टूट पड़े। लेकिन सुबकतगीन का मशवरा इसके बरअक्स था। वो चाहता था कि ये लड़ाई उसके दारुल हुकूमत के करीब हो, ताकि इसके कमजोर पड़ते ही हम इसके दारुल हुकूमत लाहौर पर कब्जा कर लें। हिंदू अपने दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए अपनी जान पर खेल जाएंगे, भागना भी चाहें तो नहीं भागेंगे। मैं भी एक फैसला कुन जंग का हामी हूँ। मैं इन्हें मौका नहीं देना चाहता कि वो भागकर लाहौर का रुख करे। छोटे मोटे हमले तो मैं बहुत कर चुका, अब आखिरी जंग लड़ना चाहता हूँ, ताकि इस्लामी परचम गजनी से लाहौर तक लहराने लगे। मुसलमानों का लश्कर पहाड़ों और मैदानों को अबूर करता हुआ चला जा रहा था। इस लश्कर की खास बात यह थी कि इस जिहाद में इसका कम उम्र बेटा महमूद शौके जिहाद में इसके साथ चला आया था। इसकी उम्र बमुश्किल 14-15 साल होगी, लेकिन वो जंगी तरबियत से आशना हो चुका था। फितरी दलेरी इसके रगों में शामिल थी, इसीलिए उमरा की मुखालफत के बावजूद सुबकतगीन इस खतरनाक मार्के में इसे अपने साथ ले आया था। ये लश्कर सफर करता हुआ एक ऐसे मुकाम तक पहुंच गया जिनके 3 अतराफ बुलंदो बाला पहाड़ थे। एक जानिब मीलों लंबा मैदान फैला हुआ था। किसी ने बताया कि अगर हम और आगे चलते रहे तो मुल्तान की सरहद तक पहुंच जाएंगे, जहां से लाहौर कुछ फासले पर नहीं। दरअसल वो पेशावर और काबुल के दरमियान किसी जगह खड़े हुए थे। वो मजीद आगे बढ़ना चाहते थे कि तजर्बाकार सुबकतगीन ने मुखालिफ सिमत से आने वाली हवा में कुछ सूंघ लिया और हाथ के इशारे से लश्कर को रुकने का मशवरा दिया। अगली सफ के कदम रुके तो पीछे आने वाला लश्कर खुद ब खुद रुक गया। इसने अपने चंद सरदारों को अपने पास बुलाया। मेरा तजर्बा कहता है कि दुश्मन हमसे बहुत करीब है। किसी को भेजकर मालूम करो कि दुश्मन कितने फासले पर है और किस हालत में है, सफर कर रहा है या पड़ाव डाले हुए है। जोशीले नौजवानों की क्या कमी थी। एक नौजवान अपना घोड़ा लेकर आगे बढ़ा। अमीर मुअज्जम ये काम मेरे सुपुर्द कीजिए। इस नौजवान ने जवाब का इंतजार भी नहीं किया और घोड़ा दौड़ाता हुआ एक दर्रे में गायब हो गया। खुदा जाने इसने क्या समझा और किस तरफ चल दिया। सुबकतगीन ने कहा, इसे तो मैदान की तरफ जाना चाहिए था, ये इस दर्रे में क्यों चला गया। अब दोपहर हो गई थी। सूरज की किरणें तिरछी होकर मैदान में पड़ रही थी, लेकिन नौजवान सवार की वापसी तक खैमे नस्ब नहीं किए जा सकते थे। तेज धूप में इसका इंतजार किया जा रहा था। खिलाफ तवक्को वो सवार बहुत जल्द इसी दर्रे के जरिए वापस आ गया। सबको ताज्जुब हो रहा था कि वो उस उल्टे रुख से गया था और फिर भी इतनी जल्दी वापस आ गया। सवार ने इस अलम की तरफ देखा जिसके नीचे सुबकतगीन और दूसरे उमरा मौजूद थे। क्या देख कर आए हो? दुश्मन ज्यादा फासले पर नहीं है, यहाँ से कोई 2 मील के फासले पर इसने पड़ाव डाला है। तुमने कितनी अंदाज का तादाद का अंदाजा लगाया? जनाब, जयपाल का लश्कर हद्दे निगाह तक फैला हुआ है। ये मालूम होता है तमाम हिंदुस्तान के राजा इसके साथ मिलकर आ गए हैं। 1 लाख से क्या कम तादाद होगी। मुसलमानों ने इसी मैदान में खैमे लगा लिए। तवील सफर के बाद जरूरी था कि आराम कर लिया जाए। इसके बाद देखा जाए कि जयपाल आगे बढ़ता है या वहीं रुककर मुसलमानों का इंतजार करता है। जयपाल को भी अंदाजा हो गया था कि मुसलमानों के करीब पहुंच गए हैं। अब ये वो ख्वाब नहीं देख सकता था कि गजनी के करीब पहुंचकर जंग का आगाज करे। इसने लश्कर में ऐलान करा दिया कि कल सुबह पूजा के बाद फौज के दस्ते आगे बढ़ेंगे और मुनासिब फासले पर पहुंचकर सफे तरतीब दे दी जाएगी। मुसलमानों ने अभी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया था। सुबकतगीन के खैमे से रोशनी छिन छिन कर बाहर आ रही थी। इसका बेटा महमूद अभी अभी इसके पास आकर बैठा था। वो जो कुछ सोचता रहा था बाप के कानों तक पहुंचा देना चाहता था। बाबा हजूर, हमारा लश्कर राजा के मुकाबले में बहुत कम है। जब हम जंग शुरू करेंगे तो दुश्मन का लश्कर हमारी तादाद से भी कम रह जाएगा। सुबकतगीन ने कहा, बाबा हजूर, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर हम बहादुर हैं तो दूसरी तरफ राजपूत हैं, इनकी बहादुरी भी ज़रबुल मिस्ल है। फिर तुम क्या कहना चाहते हो कि हम मुकाबले का ख्याल छोड़ दें और वापस लौट चलें? ऐसी बुज़दिली का ख्याल मेरे दिल में आ ही नहीं सकता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि जब दुश्मन की ताकत ज्यादा हो तो ताकत से ज्यादा हिकमत अमली की जरूरत होती है। हिकमत अमली से तुम्हारी क्या मुराद है? मेरी तजवीज़ ये है कि हम जंग के शुरू होने से कबल ही इन पहाड़ों में दिफाई मोर्चे बना लें, ताकि दुश्मन जब वहां पहुंचे तो इसे हैरान कुन हमलों का सामना करना पड़े। इसके अलावा 5-5 हजार सवारों के दस्ते बनाए जाएं। ये दस्ते बारी बारी लड़ें।
पहले एक दस्ता मैदान में जाए, जब ये दस्ता थक जाए तो दूसरा रवाना हो। इस तरह हम हर वक्त ताज़ा दम फौज के साथ जंग लड़ेंगे। सुबकतगीन ने मुस्कुराकर महमूद की तरफ देखा। मुझे आज अपनी तरबियत पर फख्र हो रहा है। तुमने बिल्कुल मुनासिब राय दी है। अगर मैं भी कुछ देर गौर करता तो इसी नतीजे पर पहुंचता। महमूद की तजवीज़ के मुताबिक मोर्चे कायम कर दिए गए। दूसरी तरफ राजा जयपाल के लश्कर में रत जगह हो रहा था। जयपाल के खेमे में इसका सिपा सालार भीम बैठा हुआ था। दोनों के दरमियान आने वाली जंग के बारे में मशवरे हो रहे थे। कुछ मुसलमानों के लश्कर के बारे में मालूम हुआ। जयपाल ने पूछा। मेरे आदमी खूब अच्छी तरह जायजा लेकर आए हैं, भीम ने इत्तला दी। तुम्हारे ख्याल में मुसलमानों की तादाद कितनी होगी? हमसे कोई 1/4 भी नहीं, यही कोई 20-30 हजार, और हम 1 लाख हैं। क्या इससे जाहिर नहीं होता कि बस गजनी हमारे हाथ आने वाला है? वो दिन कितना भाग वाला होगा जब गजनी के बाजारों में हमारी फतह का जुलूस निकलेगा। होना तो यही चाहिए, लेकिन मुझे एक वहम आता है। मुसलमान बड़ी चालाक कौम है, कहीं उन्होंने बाकी फौज पहाड़ों में ना छुपा दी हो। भगवान की कृपा से वो फौज छुपी ही रहेगी। हमारी 1 लाख फौज इन्हें कुचल कर रख देगी। भगवान से प्रार्थना तो यही है, लेकिन मेरी भी एक तजवीज़ है। हम पूरी फौज मैदान में ना भेजें। मुसलमान लड़ाका कौम है। मुझे यकीन है कि ये जंग कई रोज तक जारी रहेगी। हम अपनी फौज 3 हिस्सों में तकसीम कर दें। एक दिन एक हिस्सा मैदान में जाए, दूसरे दिन दूसरा और तीसरे दिन तीसरा हिस्सा। इस तरह हम हर रोज ताज़ा दम फौज से लड़ेंगे। मुझ में इतनी ताब नहीं कि 3 दिन इंतजार करूं। 1 लाख फौज लेकर जाओ और चंद घंटों में फैसला करके मुसलमानों को गजनी तक भगाते ले जाओ। सुबकतगीन को मालूम तो हो कि जयपाल से टकराने का मतलब क्या होता है। जैसी आपकी मर्जी। लश्कर में ऐलान कर दो कि कल सुबह होते ही मैदान जंग में पहुंच जाएं। इससे पहले मुसलमान आगे बढ़कर हम तक पहुंचे। मैं इन तक पहुंचना चाहता हूं। महाराज जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मुसलमानों के लश्कर में फजर की अजान बुलंद हुई। सफ़े बन गई। नमाज से फारिग होने के बाद जितने सालार थे सब सुबकतगीन के गिर्द जमा हो गए। सुबकतगीन ने दुआ मांगने के बाद इन्हें मुखातिब किया। मालूम होता है दुश्मन आज ही हमसे टकराने का इरादा कर रहा है। हमें इसका ऐलान जंग मंजूर है। तुम भी यहाँ से 1 फरलांग के फासले पर अपनी सफ़े बना लो। कोशिश करो कि पहर इस जानिब से हो। जब वो हमला करे तो दिफाई जंग करते हुए इन्हें खूब थका दो। इनके थकते ही अपने दस्ते के साथ कलब में आ जाऊंगा और फिर बाकायदा जंग शुरू हो जाएगी। अपनी कुछ से बेफिक्र रहना, क्योंकि दिफाई मोर्चों में हमारी सिपाह छुपी बैठी है। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए और मुसल्ला होकर मैदान कारजार में पहुंच गए। हिंदुओं की लश्करगाह में भी नाकूस की सदाएं बुलंद हुई। जे जे कार के नारे लगने लगे। इनका लश्कर भी रवाना हुआ और मुसलमानों से कुछ फासले पर आकर सफ बस्ता हो गया। राजा जयपाल अपने घोड़े पर सवार हुआ और एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर मुसलमानों का लश्कर देखने लगा। इसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। इसके टड्डी दल लश्कर के सामने इसकी तादाद की कोई अहमियत ही नहीं थी। इसने एक मर्तबा फिर अपने लश्कर पर नजर डाली। इस वक्त साफ नजर आ रहा था कि इसकी आंखें किसी को तलाश कर रही है। वो नौजवान सालार और इसका दस्ता नजर नहीं आ रहा था जिसने सुबकतगीन को कत्ल करने का अहद किया था। वह इस ऊंचे टीले से नीचे उतरा। घोड़ा दौड़ाता हुआ अपनी फौजों के सफों में घुस गया। मैमना, मैसरा, कलब आगे पीछे सब देख आया। वो किसे तलाश कर रहा था किसी को भी पता नहीं था। थक हार कर वो भीम के पास आया और सरगोशी में इससे पूछा। इसने जो कुछ बताया इसके बाद जयपाल मुतमईन नजर आने लगा। इसे याद आया कि इस नौजवान ने ये अहद लिया था कि इसे और इसके दस्ते को बाकी फौज से अलग रखा जाए। वो अपनी मर्जी से जब और जहां से चाहे सुबकतगीन पर हमला आवर हो। मुसलमानों की तरफ से पहल नहीं हो रही थी। जयपाल को गजनी जाने की जल्दी हो रही थी। इसने तंग आकर अपनी फौज को हमले का हुक्म दे दिया। दोनों फौजें आगे बढ़ी और एक दूसरे में पैवस्त हो गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुसलमानों में थकन के आसार पैदा हो गए और उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। इसी वक्त सुबकतगीन, महमूद और दूसरे सरदार महज चंद सवारों के साथ आगे बढ़े और दुश्मन पर झपट पड़े। जयपाल अपने हाथी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। इस मुसलमान अमीर की अकल क्या घास चरने चली गई है
میری 1,00,000 فوج کے سامنے چند ہزار لے کر نکلا ہے۔ اس کی ہنسی اچانک قہقہے میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک درے سے وہی نوجوان سالار اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا جس نے سبکتگین کے قتل کا عہد کیا تھا۔ اس نے دراصل اسلامی لشکر کی پشت سے حملہ کیا تھا۔ اس کا نشانہ سبکتگین تھا۔ وہ اس تک پہنچ بھی گیا، لیکن دفاعی مورچوں میں چھپے ہوئے دستوں میں سے ایک دستہ باہر نکلا اور اس پر ٹوٹ پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب گاجر مولی کی طرح کٹ کر رہ گئے۔ وہ سالار ابھی تک ڈٹا ہوا تھا، لیکن جلد ہی محمود کی تلوار کا نشانہ بن گیا۔ یہ خبر سب سے پہلے بھیم نے جے پال کو سنائی۔ وہ اس وقت اپنی فوجوں سے الگ ہٹ کر لڑائی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس خبر کو سنتے ہی اسے یقین ہو گیا کہ اب کسی انتظار کی ضرورت نہیں، باقاعدہ جنگ کرنی پڑے گی۔ نوجوان سالار کے قتل کی جتنی خوشی بھیم کو ہوئی تھی، کسی کو نہیں ہوگی۔ اس نے سالار کو یہ ترکیب سمجھائی تھی کہ اسے اسلامی لشکر کی پشت سے حملہ آور ہو۔ اس نے اس درے کی نشاندہی کی تھی جس میں داخل ہو کر وہ مسلمانوں کی پشت تک پہنچا تھا۔ حالانکہ بھیم جانتا تھا کہ پہاڑوں میں اسلامی لشکر کے مورچے بنے ہوئے ہیں۔ یہ قدم بھیم کو اس لیے اٹھانا پڑا تھا کہ پردھان منتری کی بیٹی چمپا کا ایک امیدوار وہ بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نوجوان سالار سبکتگین کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو چمپا سے اس کی شادی یقینی ہے۔ اب اس کے راستے کا یہ کانٹا نکل گیا تھا۔